بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FM اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول بلیک سن کا تیسرا حصہ۔ مصنف ہے مظہر کلیم MA۔ سنیے، انجوائے کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تنویر اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایکشن سے بھرپور ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی ہابی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت فلیٹ میں ہی گزارتا تھا اور وقت گزارنے کے لیے وہ ایکشن سے بھرپور فلمیں دیکھتا رہتا تھا۔ چونکہ ایسی فلمیں خریدنے کے لیے اسے شہر کے تمام ایسے اسٹورز پر جانا پڑتا تھا جہاں ایسی فلمیں فروخت کی جاتی تھیں، اس لیے سب اسٹورز کے مالکان اور مینیجر اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تنویر نے انہیں یہی بتایا ہوتا ہے کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ تنویر اس وقت بھی ایک زبردست ایکشن فلم دیکھنے میں اس قدر مہو تھا کہ اس کی نظریں اسکرین پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ کے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، لیکن تنویر نے دانستہ اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ اس وقت ایکشن اپنے عروج پر تھا اور وہ نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب رسپانس نہیں ملے گا تو کال کرنے والا خود ہی کال کرنا بند کر دے گا، لیکن گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اچانک تنویر کے ذہن میں خیال آیا کہ جولیا کا فون نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے کہا۔ ٹی وی کی آواز پہلے ہی کافی کم تھی کیونکہ تنویر ہمیشہ ٹی وی کی آواز کم رکھتا تھا کیونکہ اس کی تمام تر دلچسپی ایکشن میں تھی۔ اسے ڈرامہ، مزاح یا ایسے ہی دوسرے موضوعات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ایکشن دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، سننے کی نہیں، اس لیے وہ آواز کم رکھتا تھا۔ کاشفا بول رہی ہوں، آپ کی ہمسائے۔ دوسری طرف سے ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ سوری، رانگ نمبر، تنویر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن چند لمحوں بعد گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، لیکن تنویر نے اس بار اسے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے اسے یقین ہو کہ یہ کال بھی رانگ نمبر ہی ہوگی۔ لیکن اسی لمحے ایکشن اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو گیا تو اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائیں اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے کہا۔ فون بند نہ کریں، یہ رانگ کال نہیں ہے، میں آپ کو ہی کال کر رہی ہوں۔ میرا نام کاشفا ہے اور میرا فلیٹ بھی اسی پلازا میں ہے جس میں آپ کا فلیٹ ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی ہمسائے ہوں۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والی خاتون نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تم نے کیوں مجھے فون کیا ہے؟ کیا اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سوری، میں ایسے ہتھ کنڈوں میں آگے والا نہیں ہوں، مجھے فون نہ کرنا ورنہ گردن توڑ دوں گا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ نان سینس، نہ جانے دوسروں کو لوٹنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا بہانے گھڑ رکھے ہیں۔ نان سینس، تنویر نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اسے کوئی نہ کوئی سبق سکھانا پڑے گا، ویسے ہی باز نہیں آئے گی۔ تنویر کو گھنٹی کی آواز سن کر غصہ آ گیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ضروری نہیں کہ اس عورت کا فون ہو، جولیا بھی فون کر سکتی ہے، اس لیے اس نے ایک بار پھر جھٹکے سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کہا۔ تنویر صاحب، فار گاڈ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے آپ سے کوئی مالی ہیلپ چاہیے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ میری ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ کاشفا نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور آپ نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ پولیس کے پاس جائیں، تنویر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ پولیس میری بات نہیں سنتی کیونکہ جس کے خلاف میں شکایت کر رہی ہوں اس کا تعلق ایک جرائم پیشہ آدمی ہے جو ایک بدنام کلب کا مالک ہے۔ کاشفا نے کہا تو کلب کا نام سن کر تنویر چونک پڑا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے تو یہ بتائیے، اور آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دے دو میں آپ کے فلیٹ میں آ کر تفصیل بتاؤں، کاشفا نے کہا۔ سوری، میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے میں کسی اجنبی خاتون کو فلیٹ پر نہیں بلا سکتا۔ آپ مجھے فون پر بتا دیں جو بتانا چاہتی ہیں، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں، تنویر نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ پھر آپ میرے فلیٹ پر آ جائیں، 7ویں منزل پر 717 نمبر، کاشفا نے کہا۔ کاموں کا کیوں آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ میں کسی اجنبی عورت کے فلیٹ پر کیوں جاؤں گا، تنویر نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔
اس کا مطلب ہے کہ مس صالحہ سے آپ کو فون کرانا پڑے گا۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کے بارے میں صالحہ نے جو کچھ بتایا ہے آپ فوری طور پر میری مدد پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کاشفہ نے کہا، کون مس صالحہ؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تنویر نے کہا، آپ کی ساتھی جو ٹاور پلازا میں رہتی ہے۔ میں اس کے پاس ہیلپ کے لیے گئی تھی کیونکہ میں انٹرنیشنل ہوٹل میں ملازمت کرتی ہوں جو اس کے والد کی ملکیت ہے، اور اس کا جنرل مینیجر چاہے تو میری مدد کر سکتا تھا۔ اس نے جنرل مینیجر کو فون کیا لیکن اس نے معذرت کر لی۔ میں بے حد مایوس ہوئی تو اس نے میرا پتہ پوچھا تاکہ وہ کسی ساتھی یا دوست سے کہہ کر میرا کام کرا دے۔ جب میں نے پتہ بتایا تو اس نے کہا کہ اس کا ایک ساتھی تنویر اسی پلازا میں رہتا ہے، اگر وہ میری مدد پر آمادہ ہو جائے تو میرا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے یہ فون نمبر دیا ہے۔ کاشفہ نے کہا، تو تنویر کو صالحہ پر غصہ آ گیا کہ اس نے خواہ اس کا ریفرنس دے دیا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ تو بتاؤ، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر؟ تنویر نے صالحہ کا غصہ بھی اسی پر اتارتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، آپ سرے سے انسان ہی نہیں ہیں، آپ کو کسی مظلوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس بار دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نان سینس، نہ جانے ان عورتوں پر بھی کیا پھٹکار ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتی رہتی ہیں۔ اور ہاں، صالحہ نے میرے بارے میں کیوں بتایا؟ یہ غلط ہے۔ تنویر نے رابطہ ختم ہونے پر ریسیور رکھتے ہوئے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے صالحہ کے فلیٹ کا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ صالحہ بول رہی ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی صالحہ کی آواز سنائی دی، تنویر بول رہا ہوں مس صالحہ، یہ آپ نے فضول لوگوں کو میرا فون نمبر کیوں دینا شروع کر دیا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے تنویر صاحب؟ آپ تو بڑے غصے کی حالت میں بول رہے ہیں، بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو گیا آپ کا؟ دوسری طرف سے صالحہ نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو تنویر نے اسے کاشفہ کے فون آنے اور پھر آخر میں کچھ بتائے بغیر فون بند کر دینے کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ وہ مظلوم عورت ہے تنویر صاحب، اس کے ساتھ واقعی ظلم ہے، اور یہ ظلم انٹرنیشنل ہوٹل کے ایک اسسٹنٹ مینیجر نے کرایا ہے۔ میں نے جنرل مینیجر سے بات کی لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کی ہے کہ وہ ملازمت کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ میں نے ڈیڈی سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، تو میں نے سوچا کہ جولیا کو ساتھ لے کر خود ہی یہ کام کر دوں، لیکن جب کاشفہ نے مجھے بتایا کہ وہ اسی پلازا میں رہ رہی ہے جس پلازا میں آپ اور دونوں کی رہائش پذیر ہے، تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کسی سرکاری تنظیم سے متعلق ہے اور بے حد ہمدرد دل کے مالک ہیں، اور آپ کا فون نمبر بھی دے دیا، اور مجھے یقین تھا کہ جب کاشفہ آپ کو تفصیل بتائے گی تو آپ ضرور اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور ہماری پوری ٹیم میں آپ ہی اس کے کام آ سکتے ہیں۔ صالحہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر وہ کیوں نہیں بتا رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اب کیا چاہتی ہے؟ تنویر نے کہا، میں نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ انٹرنیشنل ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر راڈ نے ظلم کیا ہے۔ کاشفہ یہاں اکیلی رہتی تھی، وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ انٹرنیشنل ہوٹل میں خریداری کے شعبے میں افسر ہے۔ اس کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں اکٹھے فوت ہو گئے۔ ایک بھائی تھا، وہ شادی کے بعد مستقل طور پر ایکریم میں شفٹ ہو گیا۔ والدین کی وفات پر وہ آیا، اس نے کاشفہ کو اپنے ساتھ ایکریم میں چلنے کا کہا، لیکن کاشفہ سے اس کی بھابھی کا رویہ ایسا ہے کہ اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بے حد اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے۔ اسسٹنٹ مینیجر راڈ نے اسے فلرٹ کرنا چاہا لیکن کاشفہ نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا، کیونکہ کاشفہ جانتی تھی کہ وہ نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 3-4 بچے بھی ہیں۔ اس راڈ کے تعلقات جرائم پیشہ افراد سے ہیں۔ اس نے اس کے ذریعے کاشفہ سے انتقام لینے کا سوچا، اور پھر وہ دیوقامت سیاہ فام بدماش ایک رات کاشفہ کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ اسے بے عزت کرنا چاہتے تھے لیکن کاشفہ نے ان کی منتیں کی اور انہیں بھاری رقم اور زیورات دینے کا کہا تو وہ رضامند ہو گئے۔ کاشفہ نے انہیں فلیٹ میں موجود بھاری رقم بھی دی اور اپنا تمام زیور بھی دے دیا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کاشفہ کو اتنا صدمہ ہو کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ غنڈوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے پولیس کو یا کسی اور کو بھی اس بارے میں بتایا تو اسے بے عزت کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ کاشفہ نے وعدہ کر لیا، لیکن دوسری رات وہ پھر آ گئے۔ اس بار وہ کاشفہ سے اس کے بینک میں موجود تمام جمع پونجی جو اس نے والدین کا مکان فروخت کر کے بینک میں جمع کر رکھی تھی حاصل کرنا چاہتے تھے، ورنہ اسے وہ بہت دھمکیاں دے رہے تھے، جس پر مجبوراً کاشفہ نے اپنی زندگی بچانے کے لیے انہیں بلینک چیک دینا پڑا۔ وہ اسے بے ہوش کر کے چلے گئے۔ دوسری روز کافی دن چڑھے، جب کاشفہ کو ہوش آیا تو اس نے بینک فون کیا تو بینک نے بتایا کہ 2 سیاہ فام چیک لے کر آئے تھے اور وہ تمام رقم لے گئے ہیں۔ کاشفہ کے اکاؤنٹ میں صرف چند روپے موجود ہیں۔ یہ ایسا صدمہ تھا کہ اسے اسپتال جانا
جانا پڑا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب وہ دوبارہ ڈیوٹی پر جانے لگی تو اس نے راڈ کے چہرے پر انتقامی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ پہلے ہی سمجھتی تھی کہ یہ سارا فساد اسی شیطان کا ہے، چنانچہ وہ اس کے گھر گئی تاکہ اس کی بیوی کی منت سماجت کرے کہ وہ راڈ کو اس کی رقم واپس کرنے پر آمادہ کر دے، لیکن وہاں اس کی بیوی نے الٹا اس کی بات سننے کے بجائے اسے بے عزتی کر کے اپنی رہائش گاہ سے نکال دیا، کیونکہ اس کی بیوی کی انگلی میں اس نے وہ انگوٹھی دیکھ لی تھی جو اس کے زیورات میں شامل تھی، جو وہ سیاہ فام کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے پولیس کارروائی کے لیے پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی کو ایکری میں فون کر کے انہیں اپنی آپ بیتی سنائی تو اس نے اسے ایکری میں آنے کا کہا اور کچھ رقم بھجوا دی تاکہ کاشفہ ٹکٹ لے سکے، لیکن اس کی بھابھی نے فون کر کے اسے ایسی باتیں کہیں کہ کاشفہ سمجھ گئی کہ وہ اس ایکری میں آنا پسند نہیں کرتی۔ پھر کسی کے کہنے پر وہ مجھ سے ملی، میں نے جنرل مینیجر کو فون کیا لیکن اس نے معذرت کر لی۔ پھر ڈیڈی سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ صالحہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ تو واقعی ظلم ہوا ہے اور مجھے اس کے کردار نے متاثر کیا ہے کہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اور زیورات دے کر اپنی عزت بچا لی ہے، ورنہ عورتیں مر تو جاتی ہیں لیکن اپنے زیورات کسی کو نہیں دیتی۔ لیکن اب مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ تنویر نے کہا، صرف انتقام۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ عورت اگر انتقام پر اتر آئے تو پھر اپنا سب کچھ چاہے برباد ہو جائے لیکن انتہائی بھیانک انتقام وہ ضرور لیتی ہے۔ صالحہ نے کہا، اس راڈ کو گولی مار دیں، انتقام پورا ہو جائے گا۔ تنویر نے کہا، وہ راڈ کے ساتھ ساتھ ان سیاہ فاموں سے بھی انتقام لینا چاہتی ہے جنہوں نے گوئے سے بے عزت نہیں کیا لیکن اس پر تشدد کیا اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ ان کا پتہ راڈ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ صالحہ نے کہا، مطلب ہے کہ پہلے راڈ سے ان سیاہ فاموں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، پھر راڈ سمیت ان دونوں سیاہ فاموں کو بھی گولی مار دی جائے تاکہ ان کا انتقام پورا ہو سکے۔ تنویر نے کہا، نہیں نہیں، راڈ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ راڈ کو ہلاک کرنا دراصل ان بچوں کے ساتھ ظلم ہے، البتہ اسے اتنا سبق ضرور ملنا چاہیے کہ آئندہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسا کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اور سیاہ فام تو بدمعاش ہیں، کسی جرائم پیشہ کلب سے وابستہ ہوں گے، ان کو بھی ایسا سبق ملنا چاہیے کہ وہ آئندہ کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچ کر ہی خوف زدہ ہو جائیں۔ صالحہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کاشفہ سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا چاہتی ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تنویر نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر پلازا ایکسچینج سے رابطہ کر کے انہیں کاشفہ کا فلیٹ نمبر بتا کر ان سے فون نمبر لیا اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاشفہ بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد کاشفہ کی آواز سنائی دی، تنویر بول رہا ہوں، مجھے صالحہ نے ساری تفصیل بتا دی ہے، تمہارے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ تنویر نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری ناسمجھی تھی کہ میں نے سوچا کہ تم میری ہیلپ کرو گے، لیکن تمہیں مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ سوری، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اب جو ہوگا وہ بھی ہوگا۔ ایک کاشفہ ان بدماش سے انتقام نہ لے سکنے کی وجہ سے خودکشی کر لے گی تو دنیا میں رہنے والے آپ جیسے لوگوں کا کیا فرق پڑے گا؟ فون کرنے کا شکریہ، کاشفہ نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور اس نے ساتھی رابطہ ختم کر دیا۔ ان عورتوں کی عقل الٹی ہوتی ہے، پہلے منتیں کرتی رہتی ہیں، اب جب میں نے پوچھا تو نخرے شروع کر دیے، نان سینس۔ لیکن اگر اس احمق نے خودکشی کر لی تو یہ تو زیادتی ہوگی، تنویر نے کہا اور ایک بار پھر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ اوہ، یہ جذباتی ہو رہی تھی، کہیں واقعی خودکشی نہ کر لی ہو، اس نے تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے خودکشی کا خیال آتے ہی تنویر کو اب محسوس ہو رہا تھا جیسے کاشفہ کا مجرم وہ خود ہے۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ کے ذریعے وہ 7ویں منزل پر پہنچ گیا، وہاں عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے۔ 17 نمبر کمرے کا دروازہ بند تھا اور سائٹ پر کاشفہ کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ کاشفہ کا پورا نام کاشفہ رضا تھا اور نام کے نیچے انٹرنیشنل ہوٹل کے الفاظ بھی درج تھے۔ تنویر نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے کاشفہ کی آواز سنائی دی، لیکن تنویر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز خوف کی وجہ سے لرز رہی ہو۔ تنویر ہوں، دروازہ کھولو، تنویر نے کہا۔ سوری تنویر صاحب، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ کاشفہ نے بھی شاید ضد پر اتر آئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، سنا نہیں تم نے؟ تنویر نے خاص سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی ڈور فون بند ہوا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کے جیسے لڑیاں سی بنی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں مر جاؤں گی، یہاں میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کاشفہ نے رو دینے والے لہجے میں آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، یوں دروازے پہ کھڑے ہو کر باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، اندر چلو، تنویر نے ایک بار پھر تحکمانہ لہجے میں کہا اور کاشفہ جو دروازے کے درمیان کھڑی تھی سائڈ پر ہو گئی۔ تنویر اندر داخل ہوا۔
दरवाज़ा लॉक मत करना, वैसे ही बंद कर दो, तनवीर ने कहा और सामने मौजूद कुर्सियों की तरफ बढ़ गया। फ्लैट खासा साफ़ सुथरा था और फर्नीचर भी खासा कीमती और जदीद था। मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी औरत हूँ और तुम मेरे लिए अजनबी मर्द हो। तुमने कहा था कि तुम अपने फ्लैट पर किसी अजनबी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम खुद एक अजनबी औरत के फ्लैट पर क्यों आए हो? काशिफा ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम अब अजनबी नहीं रही हो। सालेह ने मुझे सारी तफसील बता दी है। तुमने जिस तरह अपने जेवरात और अपनी जमा पूंजी खुद देकर अपनी इज्जत बचा ली है, उससे बेहद मुतासिर हुआ हूँ। तुम जैसी औरतें लाखों में चंद होती हैं। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस रॉड और इन दोनों सैफामों को गोलियों से उड़ा दूंगा, तनवीर ने कहा तो काशिफा का बुझा हुआ चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। शुक्रिया, लेकिन मैं रॉड को इसलिए हलाक नहीं होने दूंगी कि वो शादीशुदा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। गो उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है कि मेरा दिल चाहता है कि उसके टुकड़े उड़ा दूं, लेकिन अब क्या करूं? मुझे उसके बच्चों पर तरस आता है, काशिफा ने कहा और उसके साथ ही वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। अजीब औरत है, उससे इंतकाम भी लेना चाहती है और उससे हमदर्दी भी कर रही है। फिर क्या करना होगा? तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद काशिफा किचन से बाहर आई तो उसने मुकामी मशरूब के 2 टिन उठाए हुए थे। उसने एक टिन तनवीर के सामने रखा और दूसरा अपने सामने रखकर वो कुर्सी पर बैठ गई। तुम इंतकाम भी लेना चाहती हो लेकिन उससे हमदर्दी भी कर रही हो। अब तुम खुद बताओ कि क्या करना होगा, बोलो। तनवीर ने टिन उठाकर स्ट्रॉ मुँह से लगाते हुए कहा। मैं क्या बताऊँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरा दिल अपनी हालत पे रो रहा है, लेकिन मुझे तर्स भी आता है, काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। अब फिर रात हो गई और मैं सारी रात अपने साथ होने वाले सुलूक पर रोती रहूँगी। ठीक है, मेरा मुकद्दर ये है, काशिफा ने कहा तो तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। चलो उठो, लिबास बदलो और मेरे साथ चलो इस रॉडर के पास। मैं देखता हूँ कि उसके साथ क्या हो सकता है कि तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाए और उसकी बीवी और बच्चे परेशान भी ना हो, तनवीर ने कहा और टिन ख़त्म होने पर वो उठ खड़ा हो गया। इस वक्त वो होटल पर नहीं, घर पर होगा, लेकिन तुम क्या करोगे? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, काशिफा ने उठते हुए कहा। उसकी रिहाइशगाह कहाँ है, क्या पता है उसका? तनवीर ने कहा तो काशिफा ने कॉलोनी का नाम और कोठी नंबर, कोठी का फ़ोन नंबर भी बता दिया। तनवीर ने फ़ोन किया, रिसीवर उठाया, तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जी साहब, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा और अंदाज बता रहा था कि वो घर का मुलाजिम है। रॉडर साहब से बात कराओ, मैं तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। साहब तो चीफ क्लब गए हुए हैं और वो तो रात गए वापस आएंगे। आप कल इनके होटल फ़ोन करके उनसे बात कर ले, मुलाजिम ने जवाब दिया तो तनवीर ने रिसीवर रख दिया। आओ, वो चीफ क्लब में है और उससे वो दियाफाम बदमाशों के बारे में मालूम करें। अब मैं अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ ताकि लिबास तब्दील कर लूँ, तुम वहीं आ जाओ, फिर इकट्ठे चीफ क्लब चलेंगे, तनवीर ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। उसने लिबास तब्दील किया ही था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर ने डोर फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। कौन है? तनवीर ने कहा। काशिफा हूँ। फ़ोन से काशिफा की आवाज़ सुनाई दी तो तनवीर ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रखा और आगे बढ़कर बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया और खुद बाहर आकर उसने फ्लैट को लॉक कर दिया। आओ, तनवीर ने कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। काशिफा सादा लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसका लिबास देखकर तनवीर की आंखों में तहसीन के तासुरात उभर आए थे। शायद उसके जहन में था कि चूंकि काशिफा होटल में काम करती है इसलिए शोबिस के लोगों जैसे लिबास पहनने की आदी होगी, लेकिन काशिफा का लिबास तो सालेह और जोलिया से भी सादा था और उसने सिर्फ चेहरा वॉश किया था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तनवीर ने यह सब कुछ एक नज़र से देखा था और फिर वो मुड़कर आगे बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से चीफ क्लब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तुम पहले भी चीफ क्लब गई हो? तनवीर ने साइड सीट पर बैठी काशिफा से मुखातिब होते हुए कहा। मैं किसी क्लब में नहीं जाती, सिर्फ अपनी जॉब पर जाती हूँ और बस, काशिफा ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। बाकी सारे वक्त अपने फ्लैट में बंद रहती हो? तनवीर ने कहा। हाँ, ज़्यादातर, अलबत्ता कभी कभार फ्रेंड से मिलने भी चली जाती हूँ, लेकिन किसी होटल या क्लब में नहीं जाती क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं है, काशिफा ने कहा। कमाल है, खुद होटल में काम करती हो और तुम्हें वहाँ का माहौल भी पसंद नहीं है, तनवीर ने कहा तो काशिफा बेख्तियार हंस पड़ी। मैं होटल में वेटर नहीं हूँ और न ही वहाँ काउंटर गर्ल हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हूँ। ख़ासा बड़ा अमला मेरे मातहत है, मैं परचेसिंग की हेड हूँ और ये शोबा होटल का इंतहाई हसास और मेन शोबा होता है, इसलिए मैं तो होटल नहीं जाती, मैं तो ऑफिस जाती हूँ। बाकी रहा क्लबों और होटलों में लेडीज़ का खाना पीना और गप्पे लगाना, ये काम इसलिए नहीं हो सकता कि मैं अकेली हूँ। मर्दों के साथ इस अंदाज से रवाबित रखना मुझे पसंद नहीं है। मर्द बेहद छिचोरे होते हैं, ज़रा सा उंगली पकड़ने का मौका दो तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं, काशिफा ने कहा। तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, सुना तुमने? आइंदा मेरे सामने ऐसी
बاتیں मत करना, तन्वीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने देखा है कि तुम छिछोरे नहीं और न ही तुम्हारी आंखों में अब तक वो चमक उभरी है जो किसी खूबसूरत औरत को देखकर मर्दों की आंखों में उभरती है। जानवरों जैसी चमक जिसे शिकारी की आंखों में पसंदीदा शिकार को देखकर उभरती है, काशिफा ने कहा। तुम फ्लैट में बंद रहकर क्या करती हो? क्या टीवी देखती हो? तन्वीर ने अपने अंदाज में कहा जैसे वो मौजू बदलना चाहता हो। टीवी भी देखती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं किताबें और रिसाले पढ़ती रहती हूँ, काशिफा ने जवाब देते हुए कहा। किस किस्म के रिसाले? तन्वीर ने चौंक कर पूछा। हॉरर मौजू पर छपने वाली किताबें और रिसाले मुझे मौजू बहुत पसंद है, काशिफा ने कहा। ज़्यादा हॉरर पढ़ने से लाशऊरी खौफ पैदा हो जाता है। सौलियत से मिला करो, वो तो अच्छी औरत है और वो तुम्हें घुमाएगी फिराएगी, तन्वीर ने कहा। पहले तो ये सुन लो कि ख़वातीन के बारे में बात करने से कुछ मुसलमा आदाब होते हैं। जब तक किसी खातून की शादी ना हो जाए उसे लड़की कहा जाता है और शादीशुदा को भी औरत के बजाय खातून कहना ज़्यादा मुहज़्ज़ब बात है। सौलिया भी अभी लड़की है और मैं भी। वैसे तुम्हारी बात दुरुस्त है, सौलिया वाकई अच्छी लड़की है और इसकी गैर मुल्की दोस्त तो बेहद खूबसूरत, क्यूट और प्यारी लड़की है, काशिफा ने कहा। तो तन्वीर चौंक पड़ा। किसकी बात कर रही हो? तन्वीर ने कहा। वो स्विट्ज़रलैंड की नज़ात है लेकिन वो अब तवील अरसे से पाकिस्तान में रहती है। मिस जोल या फिटर वाटर्स इसका नाम है, तुम तो जानते होंगे। उसके बावजूद पूछ रहे हो जैसे उससे जानते ही नहीं, काशिफा ने कहा। मुझे और तो ओह सॉरी, लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता जिन्हें दिलचस्पी हो उन्हें मैं दिलचस्पी लेने से रोक देता हूँ, तन्वीर ने कहा। जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम रांझे के बजाय कैदू का किरदार ज़्यादा पसंद करते हो, काशिफा ने कहा। क्या फजूल बातें ले बैठी हो? कोई और बात करो, तन्वीर ने कदरे गसीले लहजे में कहा। ये बताओ कि तुम चीफ क्लब में रॉडर से मिलकर क्या कहोगे? वो तो हर बात से मुकर जाएगा। वो इंतहाई शातिर आदमी हैं, काशिफा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मैं इसे यहाँ से उठाकर एक और जगह ले जाऊँगा और वहाँ उसे सब कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन तुमने किसी किस्म की मदाखलत नहीं करनी, ये सुन लो, तन्वीर ने कहा। तो काशिफा ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार चीफ क्लब में दाखिल हो गई। तन्वीर ने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से काशिफा भी नीचे उतर आई। तन्वीर ने कार लॉक की तो पार्किंग बॉय ने कार्ड दिया जो तन्वीर ने अपनी जेब में डाल लिया। आओ, तन्वीर ने कहा और फिर दोनों क्लब के मेन गेट की तरफ चल पड़े। अंदर हॉल में लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें औरतें भी खासी तादाद में मौजूद थीं। वो इधर कोने में औरत के साथ जो बैठा है वो ही रॉड है। हॉल में दाखिल होते ही काशिफा ने तन्वीर से मुखातिब होकर कहा। वो जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ है? तन्वीर ने कहा। हाँ वही, लेकिन उसके साथ जो औरत है उसकी बीवी नहीं है, काशिफा ने कहा। मेरे साथ आओ, लेकिन तुमने खामोश रहना है, तन्वीर ने कहा और उस तरफ को बढ़ गया जहाँ कोने में रॉडर बैठा हुआ था। तुम्हारा नाम रॉडर है? तन्वीर ने उसकी टेबल के करीब पहुंचकर खासे दरश्त लहजे में कहा। हाँ, मगर ये काशिफा क्या मतलब? रॉडर ने बेख्तियार उठकर खड़े होते हुए कहा। ए लड़की, तुम चलती फिरती नज़र आओ वरना, तन्वीर ने उस लड़की से कहा जो बड़ी हैरान और परेशान नज़रों से सब कुछ होता हुआ देख रही थी। ये क्या कर रहे हो और क्यों? रॉडर ने एहतजाज करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे हॉल ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा और उसके साथ ही रॉडर के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। तन्वीर का थप्पड़ इस कदर ताकतवर था कि रॉडर चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। थप्पड़ और चीख की आवाज़ों के साथ ही हॉल के सारे लोग चौंक पड़े। खबरदार कोई हरकत मत करना, स्पेशल पुलिस, तन्वीर ने जेब से एक बीज निकालकर इसे हवा में लहराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने उठते हुए रॉडर को ठोकर मार दी तो रॉडर एक दफ़ा फिर चीखता हुआ वापस फर्श पर जा गिरा। चलो, तुमने क्या समझ रखा है कि मुल्क से गद्दारी करके तुम स्पेशल पुलिस से बच जाओगे? तन्वीर ने चीखते हुए कहा और उसने दादास्ता अदा किए हुए लफ्ज़ मुल्क से गद्दारी ने लोगों पर जादू का असर किया। ले जाओ इसे, ये गद्दार है, ये तो नाकाबिल माफ़ी नहीं है, चंद नौजवानों ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। चलो, तन्वीर ने झुककर इसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया। रॉडर का जिस्म कांप रहा था, टांगें कपकपा रही थी। शायद मुल्क से गद्दारी और स्पेशल पुलिस के अल्फाज ने उस पर लरजतारी कर दिया था। मैं गुनहगार हूँ, मैं रॉडर ने बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। मेरे साथ शराफत से चल पड़ो तो तुम्हारी वरना हड्डियाँ फसलियाँ सब एक कर दूंगा और तुम्हारे सारे जिस्म की हड्डियाँ तोड़ कर भी ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें ये हल्फ देता हूँ कि अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो न सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगी जाएगी बल्कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ भी दी जाएगा। चलो, तन्वीर ने चीखते हुए कहा। मगर कहाँ? रॉडर ने कहा और वो खुद ही दरवाजे की तरफ गया। तन्वीर ने हाथ में मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था और वो बेहद चौकन्ना नज़र आ रहा था, जबकि उसके अक़ब में काशिफा भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात नुमाया थे। शायद उसे तन्वीर के इस दूसरे रूह का तसव्वुर तक न था।
तीनों तरतीब से चलते हुए पार्किंग में पहुंच गए। कार खोलो, तन्वीर ने चाबी काशिफा को देते हुए कहा। मैं बेगुनाह हूँ, इस काशिफा ने तुम्हें गलत पता है, रॉडर ने पार्किंग में रुकते ही मुड़कर कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि माहौल एक और ज़ोरदार थप्पड़ से गूंज उठा और रॉडर चीखता हुआ पहले साइड पर मौजूद एक कार से टकराया और फिर नीचे गिर गया। उठो, अब अगर कोई बकवास की तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा, तन्वीर ने इंतहाई दरस लहजे में कहा। तो थप्पड़ की आवाज़ सुनकर और रॉडर को नीचे गिरते देखकर जो लोग तन्वीर की तरफ बढ़ने लगे थे वो यकलक रुक गए। रॉडर की हालत वाकई बेहद खस्ता हो रही थी। वो उलट पुलट कर उठा और तन्वीर ने अगवी दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो बड़ी सादतमंदी से अंदर बैठ गया। उसके चेहरे पर तन्वीर की 5 उंगलियों के निशानात ज़ब्त हो गए थे। तन्वीर ने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम भी बैठो, तन्वीर ने कार के करीब खड़ी काशिफा से कहा, जो अब खुद कांप रही थी। उसके चेहरे से इस कदर खौफ नुमाया था कि शायद इस कदर खौफ रॉडर के चेहरे पर भी नजर ना आ रहा था। तन्वीर के कहने पर वो बगैर कोई बात किए किसी मामूल की तरह साइड सीट पर बैठ गई। तो तन्वीर ने बटन दबाकर कार के दरवाजे लॉक कर दिए ताकि रॉडर दरवाज़ा खोलकर बाहर ना जा सके। रॉडर भी खामोश बैठा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बेहद गरगो हो चुकी थी और वो बेइख्तियार लंबे लंबे सांस ले रहा था। तन्वीर ने कार क्लब के मेन गेट से बाहर निकाली और चंद लम्हों बाद उसकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। कार में कब्रिस्तान जैसी खामोशी तारी थी। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद एक कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक मुतवस्सित टाइप को कोठी के बड़े गेट्स के सामने रुक गई। तन्वीर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाए तो छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर आ गया। कासिम, फाटक खोलो, तन्वीर ने कार की खिड़की से सर बाहर निकाल कर कहा। जी साहब, नौजवान ने कहा और वह वापस मुड़कर छोटी खिड़की से अंदर गायब हो गया। सामने लगे हुए आईने में तन्वीर की नज़रें अगवी सीट पर बैठे रॉडर पर जमी हुई थी, जिसकी आंखें बंद थी और वो कदरे सीट पर लड़क रहा था। शायद उसके अंदर मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़त बेपनाह खौफ की वजह से शिकस्त खा गई थी। ये कौन सी जगह है? साइड सीट पर बैठी हुई काशिफा ने बड़े सहमे हुए लहजे में पूछा। ये एक सरकारी तंजीम 4 स्टार्स का हेडक्वार्टर है और ये तंजीम समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ काम करती है, तन्वीर ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे बड़ा फाटक खुल गया और तन्वीर कार अंदर ले गया। पोरिश में ले जाकर उसने कार रोकी और फिर कार के दरवाजे के लॉक खोलकर वो बाहर निकल आया। दूसरी तरफ से काशिफा भी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई, अलबत्ता रॉडर वैसे ही अपनी जगह पर ढलका हुआ था। तन्वीर ने जब उसे बाहर निकालना चाहा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुका है। बेपनाह खौफ की वजह से उसका ज़हन उसका साथ छोड़ गया था। उसी लम्हे कासिम फाटक को लॉक करके तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसे उठाकर अंदर ले चलो और रॉडर में जकड़ दो, तन्वीर ने कहा। जी साहब, कासिम ने कहा और फिर वो तन्वीर की मदद से बेहोश रॉडर को कार से निकालकर उसने कंधे पर लादा और अंदरूनी तरफ बढ़ता चला गया। ये कोठी तो शायद खाली है, तुम कह रहे हो कि हेडक्वार्टर है, काशिफा ने डरे डरे और सहमे सहमे लहजे में कहा और इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे जाल में फंस जाने वाली हिरनी माहौल को और अपने शिकारी को देखती है। ये इस लिहाज से हेडक्वार्टर है कि यहाँ रॉडर जैसे लोगों को लाकर उनसे पूछ गुछ की जाती है। और तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? तन्वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। न न न नहीं नहीं, मैं खौफजदा क्यों होने लगी? काशिफा ने डरे और सहमे लहजे में कहा और तन्वीर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम अकेली हो, शायद इसलिए डर रही हो। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम हर तरह से महफूज हो, तन्वीर ने कहा और काशिफा का चेहरा तन्वीर की बात सुनकर कदरे बहाल हो गया। आओ, तन्वीर ने कहा और फिर वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ने लगा। काशिफा उसके पीछे थी, लेकिन उसका खौफ बदस्तूर मौजूद था। फिर वो दोनों बरामदे तक पहुँचे ही थे कि कासिम एक कमरे से बाहर आता दिखाई दिया। आपके हुक्म की तामील हो गई है, कासिम ने कहा। अंदर चलो और अलमारी से कोड़ा निकालो। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोड़े को चटकाते रहना ताकि ये आदमी रॉडर मुंह खोलने पर मजबूर हो जाए, तन्वीर ने कहा। जी साहब, कासिम ने कहा और वापस मुड़ गया। तन्वीर और काशिफा दोनों इस बड़े कमरे में दाखिल हो गए। सामने दीवार के साथ रॉड्स वाली कुर्सियों की कतार मौजूद थी, जिनमें से एक कुर्सी पर रॉडर ढलके हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, अलबत्ता उसके जिस्म के गिर्द मजबूत रॉड्स मौजूद थे। बैठो, तन्वीर ने सामने पड़ी कुर्सियों पर एक कुर्सी पर बैठते हुए काशिफा से कहा। तो काशिफा इस तरह कुर्सी पर टिक गई जैसे कुर्सी की सीट में नोकदार कीलें उभरी हुई हों। कासिम अलमारी से एक खौफनाक शक्ल का कोड़ा निकाल लाया और कोड़े को देखकर काशिफा की हालत और ख़राब होने लग गई। तन्वीर उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से रॉडर का सर पकड़ा और दूसरे हाथ से ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। दूसरे थप्पड़ पर रॉडर की हलक से चीख निकल गई और उसके जिस्म ने झटका खाया। तो तन्वीर ने उसका सर छोड़ दिया और वापस आकर काशिफा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया।
रॉडर की आंखें खुल गई थी। उसने लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स की वजह वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। अलबत्ता उसका चेहरा इस कदर जर्द पड़ गया था जैसे उसके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया गया हो। मैं बेगुनाह हूँ, रॉडर ने रुक रुक कर कहा। सुनो रॉडर, सच सच बता दो, वरना तुम्हारी लाश यहाँ गटर में पड़ी सड़ जाएगी और किसी को मामूली सा रंज भी नहीं होगा। और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे मासूम बच्चों की वजह से अभी तक तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जिसके तुम मुस्तहिक हो। तुमने काशिफा से फ्लर्ट करने की कोशिश की, उसने इनकार, पर तुमने इंतकामी कार्रवाई की और दो सियाफाम बदमाश उसके फ्लैट पर भेजे जो उसके जेवरात ले गए। दूसरी रात वो फिर आए और काशिफा से उसकी तमाम जमा पूंजी ले गए। मुझे उन दो सियाफामों के बारे में तफसील चाहिए और तुम्हें वादा माफ़ी गवाह बनाकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके जेवरात या उसकी कीमत वापस करना होगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, उसके बाद ये कोड़ा हरकत में आ जाएगा। 1 2 3, तनवीर ने कहा और गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मुझे ये काशिफा भली लगती थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने पूरे ऑफिस के सामने मेरी शदीद बेइज्जती की, जिससे मैंने उससे इंतकाम लेने का सोचा। वो जराइम पेशा सियाफाम अफराद रिचर्ड और जैक्सन मेरे वाकिफ़ थे, क्योंकि उन दोनों का ताल्लुक यहाँ के क्रश क्लब से था। वो क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर कार्सन मेरा दोस्त था। कार्सन ड्रग स्मगलिंग में मुलविस था। मुझे उसने भी इस धंधे में डालना चाहा, लेकिन मैंने सिर्फ उससे दोस्ती रखी हुई थी। रिचर्ड और जैक्सन दोनों उसके ख़ास आदमी थे। मैंने उन दोनों से काम लेने का फ़ैसला लिया और उन्हें काशिफा के फ्लैट पर जाने का कहा। दूसरे रोज़ रिचर्ड और जैक्सन ने मुझे रिपोर्ट दी है कि काम हो गया है, बल्कि उसके पास मौजूद भारी मलकियत के जेवरात भी लूट लिए। एक अंगूठी उन्होंने उस जेवरात में से मुझे दे दी है जो मैंने अपनी बीवी को दी थी, क्योंकि वो औरतों के पहनने की थी। फिर 1-2 रोज़ के बाद मुझे पता चला कि रिचर्ड और जैक्सन दूसरी रात फिर काशिफा के फ्लैट पर पहुंच गया और उससे ज़बरदस्ती बैंक चेक ले आए। उन्होंने बैंक से उसे कैश कराया और उसे 1,50,00,000 रुपये ले उड़े। मैंने उसकी जरनश करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों पाकिस्तान छोड़कर सोमालिया चले गए। रॉड्स ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। सोमालिया क्यों? तनवीर ने चौंक कर पूछा। वो सोमालिया के रहने वाले थे और यहाँ किसी बड़ी तंजीम के अरकान के तौर पर मौजूद थे और ड्रग स्मगलिंग में मुलविस थे। मुझे कार्सन ने बताया था कि भारी रकम हासिल होने पर वो वापस सोमालिया चले जाएंगे और वहाँ एक क्लब से अटैच हो गए हैं। उस क्लब का नाम ब्लैक क्लब है और उसका मालिक और इंचार्ज पहले कोई कोम्बो था और अब रॉल्फ है। मेरे रिचर्ड से फ़ोन पर बात हुई है तो उसने बताया है कि वो भारी रकम चाहते थे, क्योंकि यहाँ सोमालिया में उन्होंने किसी गैंगस्टर का कर्जा देना था, इसलिए वो पाकिस्तान भाग आए थे। यहाँ जब उन्हें भारी रकम मिल गई तो वो वापस चले गए हैं और अब वो वहीं रहेंगे। रॉड्स ने तेज़ तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्रश क्लब का नंबर क्या है? तनवीर ने पूछा। रॉडर ने नंबर बता दिया। कासिम, फ़ोन उठाए और उससे बात कराओ, तनवीर ने कासिम से कहा। सुनो, तुमने कंफर्म कराना है कि रॉजर और जैक्सन ही मुजरिम है और अब वो सोमाली चले गए हैं। कुछ भी हो, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए और फिर तुम आज़ाद हो गए। फिर हम जाने और रिचर्ड और जैक्सन जाने, तनवीर ने रॉडर से कहा और रॉडर ने इस बात में सर हिला दिया। कासिम ने रिसीवर उठाकर रॉडर के बताए हुए नंबर प्रेस किया और आखिरकार रॉडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कासिम ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा और दूसरे हाथ में रिसीवर। रॉडर की कुर्सी के करीब खड़े होकर उसने रिसीवर रॉडर के कान से लगा दिया। क्रश क्लब। राब्ता होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा चीखता हुआ था। इंटरनेशनल होटल का मैनेजर रॉडर बोल रहा हूँ, कार्सन से बात कराओ, रॉडर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बेहद सख्त था। हेलो, कार्सन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉडर बोल रहा हूँ। कार्सन, वो तुमने वादा किया था कि रिचर्ड और जैक्सन से रकम वापस करा दोगे। आजकल मुझे रकम की अशद ज़रूरत है, रॉडर ने कहा। वो रकम तुम भूल जाओ रॉडर, उनका ताल्लुक सोमालिया के ब्लैक क्लब से हो गया है, बल्कि बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक सन से हो गया है। अब वो बड़े लोग हैं, सुना तुमने? आइंदा ये डिमांड अपनी ज़बान पर भी मत लाना, वरना मारे जाओगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूँगा, कार्सन ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, रॉडर ने रो देने वाले लहजे में कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रख जाने की आवाज़ सुनकर कासिम ने भी रिसीवर रख दिया और फ़ोन वापस साइड पर रख दिया। तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से ली थी? तनवीर ने साथ बैठी हुई काशिफा से पूछा। मुझसे पूछ रहे हो? काशिफा ने चौंक कर कहा। हाँ, इतना बड़ा तो औहदा नहीं है तुम्हारा कि तुम इतनी बड़ी रकम बचा सको, तनवीर ने कहा। मैंने पहले बताया तुम्हें कि मैंने अपने वालिदैन का मकान फ़रोख्त कर दिया था और भाई ने भी अपना हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए मैंने तमाम रकम बैंक में रख दी ताकि मुश्किल वक्त में काम आए और उसका मुनाफा हर माह मुझे मिलता रहे ताकि मैं ईजी रहूँ, काशिफा ने जवाब देते हुए कहा। वो जेवरात कितनी मालियत के थे? तनवीर ने पूछा। इन दिनों
तो 50 लाख के होंगे, उस वक्त 30 लाख के थे, काशवा ने जवाब दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रॉडर, इसलिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए अब तुमने काशवा को देने हैं। तनवीर ने रॉडर से कहा, मैं तो होटल की तरफ से हायर किए मकान में रह रहा हूँ, मेरी तनख्वाह है, अब मैं इसमें से बचत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद मकरूज रहता हूँ, रॉडर ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम मुझे अहमक समझते हो रॉडर? तुम्हारे ताल्लुकात ड्रग स्मगलर से हैं, जो क्रश क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर तुम्हारे दोस्त हैं। रिचर्ड और जैक्सन जैसे जराइम पेशा अफराद को तुम किसी काम पर ला सकते हो। चीफ जैसे महंगे तरीन क्लब में तुम 2 लड़कियों के साथ बैठ सकते हो और कह रहे हो कि तुम मकरूज हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गोली मार देता हूँ, होटल वाले खुद ही तुम्हारी बीवी और बच्चों को संभाल लेंगे। तनवीर ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल सीधा करके उसका रुख रॉडर की तरफ करते हुए कहा, उसे मत मारो, मैं अपना कलीम छोड़ती हूँ, इसे मत मारो, इसकी बीवी और बच्चे रुल जाएंगे। काशवा ने यकलक रो देने वाले लहजे में कहा, नहीं, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। लोग उनकी मासूमियत देखकर उन पर एतमाद कर लेते हैं, लेकिन ये उनको छेड़छाड़ कर खा जाते हैं। ऐसे लोग जराइम पेशा अफराद से भी ज़्यादा माशरे के लिए ख़तरनाक होते हैं। तनवीर ने सर्द लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे मेरे बच्चों की कसम। रॉडर ने कहा, कसमें मत खाओ, ये बताओ कि रकम कब दे रहे हो, और ये भी सुन लो कि अगर तुमने वादे के मुताबिक रकम न दी तो तुम्हारी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा, चाहे तुम 7 पर्दों के पीछे छुप जाओ। बोलो, कब दोगे रकम? तनवीर ने घबराते हुए लहजे में कहा, मेरे पास रकम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। रॉडर ने कहा, ओके, फिर मर जाओ। तनवीर का लहजा सख्त हो गया। मत मारो उसे, मत मारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, काशवा ने हाथ बांधते हुए कहा। तुम्हारे हाथों लुट जाने के बावजूद ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए हाथ जोड़ रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे मालूम है कि तुम इंटरनेशनल होटल और दूसरे बड़ी होटलों में ड्रग की सप्लाई का धंधा करते हो, इससे तुम्हारी दोस्ती ड्रग स्मगलर करने वाले गिरोह से भी है, लेकिन चूंकि काशवा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे सामने तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आइंदा तुम ड्रग स्मगलिंग तो एक तरफ और किसी मुजरिमाना कार्रवाई में भी शामिल ना होगे और ना ही करोगे। और मुझे इत्तला मिल गई है कि तुमने वादा खिलाफी की है तो फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तनवीर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मुझे सबक मिल गया है और मैं काशवा का शुक्रगुजार हूँ। आज से काशवा मेरी छोटी बहन है, रॉडर ने कहा। कासिम, तनवीर ने उठते हुए कहा। उसके उठते ही काशवा भी उठ खड़ी हुई। जी साहब, कासिम ने जवाब दिया। कोड़ा अलमारी में रखकर उसे रॉड से आज़ाद करा दो, हम बाहर मौजूद हैं। तनवीर ने कहा, जी साहब, कासिम ने जवाब दिया। तो तनवीर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अभी वो दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसकी जेब में मौजूद सेल फोन की घंटी बज उठी। तो तनवीर ने चौंक कर जेब में हाथ डाला और सेल फोन निकाल कर चेक किया। स्क्रीन पर जोलिया का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। तनवीर ने राब्ते का बटन दबा दिया। यस, तनवीर बोल रहा हूँ। तनवीर ने पोरिज की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे फ्लैट पर पहुँच जाओ, चीफ ने कहा कि नया मिशन तरतीब दिया गया है और इमरान हमें ब्रीफ करेगा। जोलिया ने कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ, तनवीर ने कहा और सेल फोन ऑफ करके उसने उसे वापस अपनी जेब में रख दिया। अपनी कार के करीब पहुंचकर वो रुक गया। काशवा भी उसके साथ थी। कुछ देर बाद कासिम रॉडर को साथ लिए वहां पहुंच गया। कार में बैठो, मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दूंगा, मुझे फौरी एक ज़रूरी काम से जाना है, तनवीर ने कहा और वो खुद भी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रॉक्स नाराक में अपने क्लब के मखसूस ऑफिस में बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि सामने पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की खरक घंटी बज उठी। फिर बात हो गई, रॉक्स ने कहा और रिसीवर रखकर सुर्ख फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। उसे मालूम था कि सुर्ख फ़ोन पर सिर्फ सब हेडक्वार्टर की कॉल आती है। यस, रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। क्रश नोट्स लेबॉर्ट्री पहुँचा दिए या नहीं? दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसी बहुत सी गराया एक दूसरे से रगड़ खा रही हूँ। यस सर, रॉल्फ ने क्रश नोट्स लेबॉर्ट्री पहुँचा दिए हैं, रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने डॉक्टर स्टोम से कंफर्म किया है? दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉक्स बेख्तियार चौंक पड़ा। नहीं सर, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ, रॉक्स ने कहा। हर मामले को कंफर्म कर लिया करो, मामूली सी गफलत ब्लैक सन के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। दूसरी तरफ से कहा गया, आइंदा ऐसा ही होगा सर, हुक्म की तामील होगी, रॉक्स ने कहा। कोई गड़बड़ तो हो तो इत्तला करना, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉक्स ने रिसीवर रखकर पहले अपनी पेशानी पर आ जाने वाला पसीना साफ किया, क्योंकि उसे मालूम था कि सब हेडक्वार्टर मामूली सी गलती को भी माफ़ करने का आदी नहीं है, इस पर खुसूसी मेहरबानी होगी और मौत के खौफ से उसकी पेशानी पर पसीना उभर आया था। फिर उसने रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस चीफ, दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। रॉल्फ
रॉल्फ से बात कराओ मागा में, रॉक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने रॉल्फ की हद तक भी झूठ बोला था, क्योंकि न ही रॉल्फ ने खुद उससे रब्ता किया था और न ही रॉल्फ से मालूम किया था। उसे मालूम था कि सब हेडक्वार्टर रॉल्फ से बराह रास्त पूछ-गुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने गलत बयानी कर ली थी। लेकिन उसे मालूम था कि सब हेडक्वार्टर डॉक्टर स्टोम से बराह रास्त रब्ता कर सकता है, इसलिए उसने डॉक्टर स्टोम के बारे में गलत बयानी करने की जुर्रत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रॉक्स से रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। रॉल्फ लाइन पर है चीफ, फ़ोन सेक्रेटरी ने मौतमाना लहजे में कहा। हेलो रॉल्फ, तुमने क्रश नोट्स के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी, क्यों? बोलो, रॉक्स ने से सख्त लहजे में कहा। सॉरी चीफ, मैं 2 घंटे पहले वापस आया और यहाँ क्लब के सिलसिले में एक झगड़ा हो गया था, इस वजह से देर हो गई है। आई एम सॉरी, रॉल्फ ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। आइंदा मोहतात रहा करो, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को दस्तयाब न होगी, रॉक्स ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। आइंदा ऐसा नहीं होगा बॉस। सॉरी बॉस, रॉल्फ ने और ज़्यादा मौतबाना लहजे में कहा। अब रिपोर्ट दो, रॉक्स ने कहा। बॉस, क्रश नोट्स मुझ तक पहुँचाए गए हैं। आपका हुक्म था कि मैं खुद मोटर बोट लेकर अपने 4 साथियों समेत मास्टर आइलैंड पहुंचूं। मैंने आपके हुक्म की तामील की और डॉक्टर स्टोम ने हिफाजती दायरे ऑफ कराए और एक आदमी को बाहर भिजवाया। मैं घाट से जजीरे पर पहुंचा तो वो आदमी मुझे खुफिया रास्ते से लेबॉर्ट्री में ले गया। वहां डॉक्टर स्टोम बजात खुद मौजूद थे। मैंने उन्हें क्रश नोट दिए, उन्होंने उसे चेक करके ओके किया तो मैं ज़ेर ज़मीन रास्ते से दोबारा वापस जजीरे के ऊपर वाली सतह पर आया और फिर वहाँ से घाट पर और फिर मोटर बोट के ज़रिए वापस मागा पहुँच गया। रॉल्फ ने तफसील बताते हुए कहा। पाकिस्तान से कोई रिपोर्ट मिली है तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में? रॉक्स ने पूछा। नो बॉस, वहाँ एक ग्रुप काम कर रहा है लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, रॉल्फ ने जवाब दिया। वो ग्रुप किसकी निगरानी में काम कर रहे हैं? रॉक्स ने पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहे हैं और उसके एजेंट अली इमरान है। एयरपोर्ट पर वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही इमरान एयरपोर्ट पहुंचा और उसने जहां के लिए भी बुक कराई, मुझे इत्तला मिल जाएगी, रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा। वो इंतहाई खतरनाक एजेंट है, वो मेकअप भी तो कर सकते हैं, रॉक्स ने कहा। वो ग्रुप इस कदोकामत और गुफ्तगू के अंदाज से उसे पहचाना जा सकता है बॉस, इसलिए वो चाहे किसी भी मेकअप में हो, उनका चेक होना यकीनी है, रॉल्फ ने जवाब दिया। उस ग्रुप को कहने कि वो इंतहाई मोहतात रहे, अगर वो चेक हो गए तो ये लोग सीधे हमारे सर पर पहुंच जाएंगे, रॉक्स ने कहा। यस बॉस, मुझे मालूम है, आप फिक्र ना करें, वो हमारी तरफ रुख नहीं करेंगे और अगर करें तो मौत उनकी यकीनी हो जाएगी, रॉल्फ ने कहा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला देना, मुझसे सब हेडक्वार्टर रिपोर्ट लेता है और तुम क्लब के झगड़ों में पड़े रहते हो, रॉक्स ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबा दिया और पिटू नाने पर इसने 2 नंबर प्रेस कर दी। यस बॉस, दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर स्टोम से बात कराओ, रॉक्स ने कहा और वो रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉक्स ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉक्स ने कहा। डॉक्टर स्टोम से बात कीजिए बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं नाराग से रॉक्स बोल रहा हूँ, रॉक्स ने कदरे मौतबाना लहजे में कहा। कोई ख़ास बात है जो फ़ोन किया है? डॉक्टर स्टोम की लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने कंफर्म करना था कि क्रश नोट्स आप तक पहुंच गए हैं या नहीं, क्या वो वही है जो आपने डिमांड किए थे, रॉक्स ने कहा। हाँ, मुझे क्रश नोट्स तो पहुँच गए हैं और वो दुरुस्त है, डॉक्टर स्टोम ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इत्तलात मिल रही हैं कि शायद वो डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत और क्रश नोट्स के सिलसिले में यहाँ पहुँच जाए। गो उन्हें जजीरे के बारे में इल्म नहीं है और नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उस वक्त तक आपने खुसूसी तौर पर चौकन्ना रहना है जब तक ये लोग हलाक नहीं कर दिए जाते या फार्मूले पर मुकम्मल ना हो जाते, रॉक्स ने मौतबाना लहजे में कहा। उन्हें ये तो मालूम ही नहीं हो सकता कि हमने डॉक्टर आफ्ताब को हलाक किया है और हलाक करने से पहले उनके जहन से फार्मूला निकाल लिया है, और जब तक फार्मूला ना हो तो क्रश नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं और फार्मूला बगैर क्रश नोट्स के आगे नहीं चल सकता, इसलिए वो यहाँ क्यों आएंगे, डॉक्टर स्टोम ने लरसते हुए लहजे में कहा। हर इम्कान का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए अर्ज़ कर रहा था, रॉक्स ने कहा। ओके, डॉक्टर स्टोम ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो रॉक्स ने भी रिसीवर रखा और फिर सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठा लिया ताकि सब हेडक्वार्टर को मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट दे सके। इमरान ने कार उसकी रहायशी प्लाजा की वसी पार्किंग में रोकी जिसमें उन दोनों जोलिया की रहाइश थी। कार को लॉक करके वो इमारत की तरफ बढ़ गया। जोलिया का फ्लैट 3री मंजिल पर था, वहाँ एक के बजाय 3 लिफ्टें मौजूद थी, लेकिन इमरान बेवक्त 2 सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। ये उसकी आदत थी कि उसे इमरजेंसी ना हो तो लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता। उसका ख्याल था कि सीढ़ियाँ चढ़ने से बेहतरीन वर्जिश हो जाती है। उस वक्त भी वो सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ 3री मंजिल पर पहुँच गया। जोलिया के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया।
कौन है? जोलिया की आवाज़ डोरफोन से सुनाई दी। कौन हो सकता है, तुम बताओ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से हल्की सी कटक सी आवाज़ सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर सफदर मौजूद था। वाह, आवाज़ नुस्वानी, जिस्म मर्दाना, वाह, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वैसे आपके चेहरे पर आने वाला पसीना बता रहा है कि आप सीढ़ियाँ फैलाते हुए ऊपर आए हैं। ऐसी सूरत में तो जिस्म नुस्वानी होना चाहिए ताकि रस्सी फैलाने की वर्जिश सीढ़ियाँ फैलाने में तब्दील हो जाए। सफदर ने साइड पर होते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। बड़े कमरे में जोलिया और सालिया के साथ साथ तनवीर और कैप्टन शकील भी मौजूद थे। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान और सफदर भी कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि जोलिया और सालिया दोनों हस्बे रिवायत उठकर किचन में चली गईं ताकि सबके लिए चाय बना सकें। इमरान साहब, इस बार मिशन कहाँ का है और क्या है? सफदर ने कहा। वही मिशन है जो पहले होता था, वही इस बार भी है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। पहले उसने कब बताया है जो अब बताएगा, और तुम उससे पूछकर खामोखा उसका दिमाग ख़राब कर देते हो। अगर तुमने पूछोगे तो क्या ये खुद बताएगा? तनवीर ने खिलाफ तवक्कुल लंबी बात करते हुए कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बार मिशन सोमाली कज़ाकों के खिलाफ है और उसका आगाज़ जोलिया और सालिया की तरफ से हुआ है, कैप्टन शकील ने कहा। जोलिया, सालिया और सोमालिया, क्या मतलब हुआ? तनवीर ने चौंक कर कहा। तुम चौंके क्यों हो? क्या कोई ख़ास बात है? इस बार इमरान ने तनवीर से पूछा। हाँ, सालिया ने एक औरत को मेरे गले में डाल दिया है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है और मैं इसकी ज़्यादती का अज़ाला करूं, जबकि इस मामले में भी दो सियाफ़ा मुलव्विस थे, रिचर्ड्स और जैक्सन। अब वो मालूम हुआ है कि दोनों सोमालिया शिफ्ट हो गए हैं, तनवीर ने जवाब दिया। उसी लम्हे सालिया और जोलिया ट्रॉलियाँ घसीटती हुई वहाँ पहुँच गईं। मेरा नाम किस मामले में लिया जा रहा है? सालिया ने चाय की प्याली ट्रे से उठा कर सबके सामने मेज़ पर रखते हुए कहा। तुमने किस लड़की को तनवीर के गले में डाला? उसका कोई नाम तो होगा, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, काशिफा के सिलसिले में बात हो रही थी, क्या हुआ उसका? सालिया ने कहा। तो तनवीर ने रॉडर का फ़ोन उठाकर 4 स्टार के हेडक्वार्टर ले जाने वाले और वहाँ सारी बातचीत से आगाह कर दिया। वो दो सियाफ़ाम रिचर्ड और जैक्सन काशिफा की भारी रकम लेकर सोमालिया भाग गए हैं और वहाँ किसी ब्लैक क्लब से वाबस्ता हैं। अब जब यहाँ सोमाली कज़ाकों की बात हुई तो मैं चौंक पड़ा था, तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा। उस बेचारी काशिफा गई तो तुमने घर किया दे देकर जान निकाल दी थी। सालिया ने उसके साथ ज्यादती की है, उसे तनवीर के पास भिजवा दिया। ये काम सफदर भी कर सकता था, लेकिन नरम अंदाज में, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सालिया अब इतनी भी नादान नहीं है कि काशिफा को सफदर के पास भेजती, जोलिया ने कहा। तो एक बार फिर कमरा कहकहों से गूंज उठा। तनवीर ने जो कुछ बताया है उससे तो यही जाहिर होता है कि तनवीर को अगर मिस जोलिया कॉल न करती तो वो काशिफा समेत सोमालिया परवास कर चुका होता। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्या ज़रूरत थी? ये जो कुछ भी मैंने किया है सालिया की वजह से किया है, वरना मैं इससे बात तक ना करता, तनवीर ने कहा। इमरान साहब, क्या मैंने दुरुस्त कहा है कि इस बार मिशन सोमाली कज़ाकों के खिलाफ है? कैप्टन शकील ने कहा। कज़ाकों के खिलाफ सीक्रेट सर्विस का मिशन कैसे हो सकता है? अलबत्ता ये मिशन सोमालिया में ज़रूर है और मुझे खुशी है कि सोमालिया जाने से तनवीर का अशफाक़ का मसला भी सरकारी खर्च पर पूरा कर सकेगा, वरना उसे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते, इमरान ने कहा। तुमने अब मेरे खिलाफ फजूल बकवास शुरू कर दी है, आइंदा अगर कोई लफ्ज़ मुँह से निकालो तो गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुस्सैले लहजे में कहा। बकवास तो बकवास ही होती है, फजूल और करामत बकवास कौन सी होती है? इमरान ने कहा। इमरान साहब, सोमालिया में क्या मिशन है? सफदर ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। मैं तुम्हें ब्रीफ करने आया हूँ। एक तो ये कि तुम्हारा नकाब पोश चीफ बैठे बिठाए नादिर शाही हुक्म सादिर कर देता है कि जाओ और सीक्रेट सर्विस को ब्रीफ करो, और जब मैं इतने लंबे चौड़े अरकान सर्विस के बारे में पूछता हूँ तो उन्हें कितना ब्रीफ किया जाए तो उल्टा नाराज़ हो जाता है। इसलिए तुम खुद सोचो, तुम्हारे कद 6 फीट से भी ज़्यादा है और मैं तुम्हें ब्रीफ करके 6 इंच का बना दूँ तो फिर क्या होगा? इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कितना ब्रीफ किया जाए। इमरान ने लफ्ज़ ब्रीफ कर देने को मखसूस अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कहा। इमरान साहब, आप बेशक हमें ब्रीफ ना करें बल्कि तफसील बताएं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर चौथे दरवेश का किस्सा सुनो। चौथा इसलिए कह रहा हूँ कि सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर 3 दरवेशों के बाद मेरा नंबर आता है, इसलिए मैं बन गया था चौथा दरवेश। और चौथे दरवेश बेचारे की कथा बस इतनी सी है कि बड़े तवील वक्फे के बाद बादशाह सलामत के दरबार में एक छोटा सा चेक मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। इमरान की ज़ुबान ज़ाहिर है किसी हद तक तो महदूद नहीं रह सकती। इमरान साहब, चेक तो आपको मिल ही जाएगा। आप मिशन के बारे में बता रहे थे, मेरा ख्याल है कि आप सोमालिया जाने से ग्रेस कर रहे हैं, सफदर ने कहा। तुम्हारा चूहा
जहाँ भेजा जाएगा मैं तो चला जाऊँगा ताकि छोटा सा चेक मिल सके और 2-4 रोज़ तक मेरे आंसू खुश्क रहें और सुलेमान की ज़ुबान बंद रहे। इसके लिए चाहे मुझे सोमालिया ही जाना पड़े या रोसिया, मेरे लिए सब बराबर है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं चीफ से कहती हूँ कि उसने किसी मुसीबत को हमारी तरफ भेज दिया है, मुसलसल फजूलियत बोले जा रहा है, जूली ने इंतहाई झुंझलाए हुए लहजे में कहा और साथ ही पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। उसे मेरी भी सिफारिश कर देना कि बेचारा मुफलिस व कलाश अली इमरान बैठा रो रहा है, उसलिए इस बार पेशगी चेक दे दिया जाए। तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, चेक देना तो है, इमरान ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, जोली ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखते हुए कहा। है इलाज, अगर सफदर यार जंग बहादुर खुतबा निकाह दे याद कर ले, इमरान ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, सोमालिया में तो सिर्फ बहरी क़ज़ाक़ों के बारे में ही सुना है, और ये भी सुना है कि सोमालिया में दुनिया भर में इंतहाई गरीब तरीन और पसमानदा ख़त्ता है जहाँ लोगों के पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती। वहाँ ऐसा क्या जुर्म हो सकता है जिसके लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में लाया जा रहा है, कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। सोमालिया के बारे में आमतौर पर यही मशहूर है कि जो तुमने बताया है वो पसमानदा ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ का हर आदमी भूखा मर रहा हो। वहाँ वाकई भूख भी है, लेकिन ये भूख एहतिसाली तबके के लूट खसूट की वजह से पैदा हुई है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ हालात पहले से बेहतर हैं। जहाँ तक मिशन का ताल्लुक है, इसमें दरअसल किरदार डॉक्टर आफ्ताब का है। डॉक्टर आफ्ताब पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी का बेहद अहम नाम था। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार उछल पड़े। था से क्या मतलब इमरान साहब, क्या वो नहीं है? सफदर ने कहा। था से मतलब है कि अब वो ज़िंदा नहीं है, उन्हें हलाक कर दिया गया है, इमरान ने कहा। क्या ऐसा सोमाली क़ज़ाक़ों ने किया है? सफदर ने कहा। पहले तफसील तो सुन लो, फिर उस पर भी बात हो जाएगी। डॉक्टर आफ्ताब एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए क्रीमिया गए। वो समंदरी सफ़र के बेहद शाइक थे। वापसी पर उन्होंने बजाय हवाई जहाज़ से पाकिस्तान आने के लिए एक पाकिस्तानी मुसाफिर बरदर बहरी जहाज़ पर अपनी सीट बुक करा ली। ये जहाज़ क़ज़ाक़ों के रोड से बहुत दूर था कि अचानक इत्तला मिली कि क़ज़ाक़ों ने जहाज़ को अगवा कर लिया है, और डॉक्टर आफ्ताब ने चूँकि मज़ामत करने की कोशिश की तो वो जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। डॉक्टर आफ्ताब की लाश सोमाली क़ज़ाक़ों ने गिरोह ने वहाँ एक क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर कोम्बो के ज़रिए सोमालिया में पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले कर दी। यहाँ तक तो मामला नॉर्मल थे, लेकिन फिर एक और खौफनाक वारदात हुई। डॉक्टर आफ्ताब की रहायशगाह पर सियाफाम अफराद ने हमला कर दिया और डॉक्टर आफ्ताब की बीवी, 3 मासूम बेटियों और 2 मासूम बेटों को वहाँ मौजूद मुलाज़मीन समेत इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से हलाक कर दिया। और डॉक्टर साहब के सेफ से ये लोग ने मखसूस मिसाइल फार्मूले के क्रश नोट्स ले गए। मुझे जब पता चलो तो ये मासूम बच्चों की तरह इस बेदर्दी से हलाक हुए तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने टाइगर के ज़ुम्मे लगाए कि वो मालूमात करे कि ऐसा किसने किया है, तो टाइगर ने बताया कि ये एक ऐसा पेशावर कातिल ग्रुप है जिसे कोबरा ग्रुप कहा जाता है, और वो कलाश रोड की एक इमारत में मौजूद है। मैंने टाइगर समेत वहाँ रेड किया, उनके इंचार्ज स्मिथ से पूछ-गुछ की, जबकि उसके तमाम साथियों को हमने गोलियों से उड़ा दिया। स्मिथ ने बताया कि यह मिशन दिया गया था। उसके बताने पर क्रॉस क्लब में रॉबर्ट को उठाकर राना हाउस लाया गया। रॉबर्ट ने बताया कि उस मिशन में सोमालिया के ब्लैक क्लब के चीफ रॉल्फ ने दिया है। इमरान ने कहा तो तनवीर बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, वो दोनों सियाफाम, रिचर्ड और जैक्सन जिन्होंने सोमालिया की फ्रेंड काशफा से जेवरात और रकम लूटी है, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि वो सोमालिया वापस चले गए हैं और उन्होंने ब्लैक क्लब ज्वाइन कर लिया है। अलबत्ता एक और बात भी बताई गई है कि ये क्लब एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक सन के तहत है। तनवीर ने कहा तो इस बार चौंकने की बारी इमरान की थी। ब्लैक सन, क्या ये लफ्ज़ तुमने दुरुस्त बोला है? इमरान ने कहा। हाँ, इस ऑर्डर ने यही नाम बताया था क्योंकि इसकी कोई ख़ास अहमियत है। तनवीर ने कहा। हाँ, काफ़ी अरसे से मेरे सुनने में कई बार आया है कि ब्लैक थंडर की तरह ब्लैक सन नामी बैनुल अक़वामी तंजीम पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, और इस सिलसिले में मैंने न सिर्फ दुनिया भर में जदीद असला के हुसूल के लिए लेबॉर्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ कायम कर रखी है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे ग्रोह भी तैयार कर रखे हैं जो ड्रग और असला स्मगलिंग के साथ साथ दीगर जराइम में मुलविस होकर इसलिए रकम इकट्ठी करते हैं। और ये बात भी सुनी गई है, और ये तंजीम सियाफाम अफराद ने कायम की है, और उनका कहना है कि मुस्तकबिल में पूरी दुनिया पर सियाफामों की हुकूमत होगी और सफ़ेद फार्म और गंदुमी रंगत वाले सब अफराद सियाफाम के ग़ुलाम होंगे। अलबत्ता अब तनवीर की उस बात से
टूटी हुई कड़ियाँ जुड़ने लगीं। इमरान ने कहा, कैसे इमरान साहब? सफदर ने कहा, डॉक्टर आफ्ताब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अथॉरिटी रखने वाले साइंसदान थे। उन्होंने एक ऐसे मिसाइल का फार्मूला भी तैयार किया जिसे मुस्तकबिल का मिसाइल कहा जा सकता है। उनसे ये फार्मूला हासिल करने के लिए बहरी क़ज़ाक़ों को हुक्म दिया गया। उन्होंने वो मुसाफिर बरादर बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। ये भी इत्तला है कि डॉक्टर आफ्ताब को किसी नामालूम जजीरे पर ले जाया गया था और वापसी पर उनकी लाश मिली जो सफ़ीर के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गई। चूँकि उनका फार्मूला पाकिस्तान में महफूज था, इसलिए डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत के बारे में कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। सरदावर का कहना है कि डॉक्टर आफ्ताब बेहद शरीफ इंसान थे और साइंसदान थे, इसलिए उनकी तरफ से मज़ामत मुमकिन नहीं। फिर उन्हें हलाक क्यों किया गया, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उनके क्रैश नोट्स हासिल किए गए तो ये बात तय हो गई कि जिन्होंने क्रैश नोट्स मंगवाए हैं उनके पास फार्मूला मौजूद है, क्योंकि बगैर फार्मूले के क्रैश नोट्स किसी काम के नहीं होते और क्रैश नोट के साथ फार्मूले पर अब तक कोई काम करने वाला सामने आ जाता तो वह जल्द ख़त्म हो जाता है। अब ये बात है कि बहरी जहाज़ इसलिए अगवा किया गया कि उसमें डॉक्टर आफ्ताब मौजूद थे। फिर उन्हें कहीं ले जाया गया और वहाँ उनके जहन से फार्मूला मशीनरी के ज़रिए हासिल किया गया और फिर उन्हें हलाक कर दिया गया ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि फार्मूला उनसे हासिल किया गया है। ये सारी कड़ियाँ इसलिए उलझी हुई थी कि कोई तंजीम सामने नहीं आ रही थी, लेकिन तनवीर ने यह मसला हल कर दिया। ये सारी कार्रवाइयाँ ब्लैक सन की तरफ से की गई हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, इमरान साहब, अब हमें उसके हेडक्वार्टर के ख़िलाफ़ काम करना होगा। सफदर ने कहा, फ़िलहाल तो हमने वो जजीरा ट्रेस करना है जहाँ ये लेबॉर्ट्री मौजूद है, जहाँ पाकिस्तान फार्मूला पाकिस्तानी साइंसदान के जहन से हासिल कर उस पर काम किया जा रहा है। उसके बाद चीफ मुज़र है कि वो सिर्फ इस लेबॉर्ट्री की तबाही तक महदूद रहे या हेडक्वार्टर तक पहुँचने का भी हुक्म देता है। इमरान ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। तुम सब तैयार हो जाओ, हमने सोमालिया के दारुल हुकूमत मागा पहुँचना है। इमरान ने कहा, हम तैयार हैं इमरान साहब। सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। रॉल्फ अपने क्लब के ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ बोल रहा हूँ, बॉस पाकिस्तान से डेविड की कॉल है। दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉल्फ बेख्तियार चौंक पड़ा। पाकिस्तान से? ओह, जल्दी बात करो, रॉल्फ ने कहा। हेलो, पाकिस्तान से डेविड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, रॉल्फ बोल रहा हूँ, ब्लैक क्लब से। क्या रिपोर्ट है? रॉल्फ ने कहा। इमरान अपने साथियों समेत अब से 1 घंटा पहले पाकिस्तान से मागा के लिए रवाना हुआ है। इमरान के साथ 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं। डेविड ने कहा। फ़्लाइट की क्या तफसीलात है? रॉल्फ ने सामने पड़ा हुआ पैड उठाकर अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा और साथ ही कलमदान में मौजूद बॉल पॉइंट उठा लिया। फिर डेविड ने जो तफसील बताई वो रॉल्फ ने पैड पर लिख ली। इमरान की अपनी असल शक्ल में है? रॉल्फ ने पूछा। हाँ, डेविड ने जवाब दिया। और उसके साथी क्या वो मेकअप में है या नहीं? रॉल्फ ने पूछा। हम उन्हें नहीं जानते इसलिए उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता एक औरत स्विस निजात है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा तुम तक पहले ही पहुंच चुका है। रॉल्फ ने कहा। हाँ, मैंने इत्तला दे दी थी, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया तो उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। रॉल्फ ने क्रैडल दबा दिया और पिटून पर उसने फ़ोन सेट के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। फ्रेड से बात करो, रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजने पर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। फ्रेड लाइन पर है बॉस, बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, मैं फ्रेड बोल रहा हूँ, हुक्म। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। एक फ़्लाइट पाकिस्तान से मागा आ रही है, उसे परवाज़ करते हुए 1 घंटा हो गया है। उसके बारे में मालूमात हासिल करो कि परवाज़ ने रास्ते में कहाँ कहाँ रुकना है और वो कब यहाँ मागा पहुँचेगी, और हमें उसमें सफ़र करने वाले एक आदमी इमरान कागजात चाहिए और इमरान के साथ 5 अफराद मज़ीद हैं जिनमें 3 मर्द और 2 औरतें हैं। इन सब के कागजात की नकल चाहिए ताकि उनकी तस्वीर हमारे पास पहुंच सके। यकीनन उन 6 अफराद की इकट्ठी बुकिंग की गई होगी। रॉल्फ ने कहा। यस बॉस। क्या तफसील है उस फ़्लाइट की? फ्रेड ने कहा तो रॉल्फ ने सामने पड़े हुए पैड पर लिखी हुई तफसील दोहरा दी। मैं अभी तफसीली रिपोर्ट हासिल करके आपको कॉल बैक करता हूँ, फ्रेड ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉल्फ ने भी रिसीवर रख दिया। तो ये लोग हरकत में आ ही गए, रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। फ्रेड लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉल्फ ने कहा। फ्रेड बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से इस बार फ्रेड की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? रॉल्फ ने कहा। बॉस, पाकिस्तान से चलने वाली फ़्लाइट रात 11 बजे मागा पहुँचेगी और रास्ते में उसका एक स्टॉप है आरती एयरपोर्ट पर। वहाँ से सिर्फ फ्यूल लिया जाएगा और कागजात
کاغذات کی نقل فیکس کے ذریعے کچھ دیر بعد پہنچ جائے گی، فریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی کاغذات آئے تم نے فوراً میرے پاس فیکس کرنے ہیں، رالف نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو رالف نے کریڈل دبا دیا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہنری سے بات کرو، رالف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رالف نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رالف نے کہا۔ ہنری بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہنری، فریڈ ابھی کچھ کاغذات بذریعہ فیکس بھجوا رہا ہے، جیسے ہی کاغذات تم تک پہنچے تم نے فوراً مجھے بھجوانے ہیں، رالف نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو رالف نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون سیٹ کے اوپر والے حصے میں موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا تو فون ڈائریکٹ ہو گیا اور پھر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہارڈی بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رالف بول رہا ہوں، ہارڈی کلب بلیک کلب سے، رالف نے کہا۔ اوہ تم، کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو آج یاد کر لیا ہے، ہارڈی نے کہا۔ ظاہر ہے تم جیسے مصروف آدمی کو بغیر کام کے تو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی بڑی گیم ہم احمقوں کی طرح تو نہیں کھیل سکتے، ہارڈی نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی بہت بڑی گیم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرف سے بھی کوئی نااہلی ہو اور ہماری طرف سے کوئی انگلی اٹھے، رالف نے کہا۔ ٹھیک ہے، بینک اور اکاؤنٹ نمبر لکھ دو کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے میزائل ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہے، ہارڈی نے کہا اور پھر اس نے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ رقم ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں ایگریمنٹ سے ٹرانسفر ہو جائے گی، تم نے اب مجھے خوشخبری سنانی ہے، رالف نے کہا۔ اوکے، ہارڈی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رالف نے بھی کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ایگریمیا میں اپنے بینک سے رابطہ کر کے انہیں ہارڈی کے بینک اور بینک اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیل بتا کر $10 کروڑ منتقل کرنے کی ہدایت کر دی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ جو کہ ڈرگ اور اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث تھے، اس لیے یہ ان کے لیے کوئی بھاری رقم نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ بھاری رقم وہ بھجواتے رہتے تھے، اس لیے بینک کی طرف سے بھی صرف یس سر کا جواب دیا گیا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی، یہ بینک کی طرف سے کال تھی، انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ مطلوبہ رقم ہارڈی کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ رالف نے اطمینان بھرے انداز میں اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس سے مکمل یقین تھا کہ نہ صرف ہوائی جہاز فضا میں تباہ کر دیا جائے گا بلکہ پاکستان سیکرٹ سروس کے بھی ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ راکس کو نراق میں اطلاع کر دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ اب وہ کام ہو جانے کے بعد ہی وکٹری کی رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ عام طور پر وہ 8 بجے آفس سے اٹھ جایا کرتا تھا، پھر وہ رات گئے اس کی واپسی ہوتی تھی تاکہ کلب میں ہونے والے فنکشن کو چیک کر سکے، لیکن آج وہ آفس میں جم کر بیٹھا رہا کیونکہ ہارڈی کی کال اس کے آفس پر ہی آنی تھی۔ اس نے ٹی وی آن کر دیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ ٹی وی پر اسے فوراً ہی خبر نشر کرے گا، اور پھر وہی ہوا۔ تقریباً 11 بجے یکلق ٹی وی نے خاص خبر نشر کرنا شروع کر دی کہ پاکستان کے دارالحکومت سے ماگا پہنچنے والا طیارہ جس میں عملہ سمیت 112 افراد سوار تھے، صومالیہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر اچانک فضا میں ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں تمام افراد مسافر بیمہ عملہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومتی مشینری حرکت میں آ رہی ہے اور حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ گڈ شو، اسے کہتے ہیں وکٹری، رالف نے بچوں کی طرح فرش سے اچھلتے ہوئے چیخ کر کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رالف بول رہا ہوں، رالف نے کہا۔ ہارڈی بول رہا ہوں، تمہارا کام ہو گیا ہے، ہارڈی نے کہا۔ ہاں، میں نے ٹی وی پر خاص خبر سن لی ہے، یہ معلوم کرو کہ کوئی بچ تو نہیں گیا، اگر بچ گیا ہے تو اسے وہیں سمندر میں ہی گولیاں مار دو، رالف نے کہا۔ میں چیک کر کے ہی کال کر رہا ہوں، مسافروں اور عملہ کے ساتھ ساتھ جہاز کے بھی لاکھوں ٹکڑے اڑے گئے ہیں، ہارڈی نے کہا۔ اوکے، تھینک یو، رالف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ رالف بول رہا ہوں، ماگا سے باس، رالف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کوئی خاص بات جو اس وقت کال کی ہے، راکس نے کہا۔ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کے لاکھوں ٹکڑے بحر میں پھینک دیے گئے ہیں، رالف نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم نشے میں ہو، راکس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو رالف نے اسے پاکستان سے ڈیوڈ کی رپورٹ ملنے اور پھر ہارڈی سے ہونے والی معاہدے کی تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کارروائی کی گئی اور ٹی وی پر اس کی خاص خبر بھی نشر ہو چکی ہے۔ ویری گڈ، تم نے تو کمال ہی کر دیا، رالف نے، میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہ تھا کہ تم اتنا بڑا اقدام کرو گے،
یہ ہارڈی کون ہے؟ راکس نے کہا۔ یہ بھی صومالیہ کا ایک بہت بڑا اسمگلر ہے اور گینگسٹر بھی۔ اس نے صومالیہ میں 4 کلب اور ویلنگٹن اور ناراک میں بھی کلبوں کی ایک پوری چین ہے۔ یہ بحری جہازوں کو بھی کھلے سمندر میں لوٹ کر انہیں میزائلوں سے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ہارڈی خود ناراک میں رہتا ہے، ٹاپ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ رالف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اس ہارڈی کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ گڈ شو، تمہیں اس کا انعام دیا جائے گا، راکس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رالف نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اپنی فتح پر بھرپور جشن منانے کا سوچ رہا تھا۔ سامعین، کہانی کا تیسرا حصہ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔